So let's start with the basics part कि first of all we'll understand what is this forex market क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो beginners है completely beginners. So this session will be all about the beginners की forex basics क्या होता है, ठीक है, whether it is good, legal, illegal, ठीक है, उसके बारे में कवर कर लेते हैं. कल की रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजा हूं ना, आई गेस आई हैव अपलोडेड इट. जो मंडे को एक सेशन लिया था वेयर आई हैड स्पोकन इन दिस मैथ, दैट हैज बीन डिलीटेड बाय द जूम बिकॉज उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया. I have missed previous three classes because if you are not interested in derivative, that is fine then. कोई दिक्कत नहीं है. Because it is not necessary that you should be interested. ठीक है. Okay. Forex market. Anyone knows the full form of forex? Forex का full form क्या है? जो completely beginner है उन्हें तो मालूम होना चाहिए. थर्सडे का सेशन कौन सा था? फॉरेन एक्सचेंज, राइट? फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है? व्हाट डू वी डू इन द फॉरेन एक्सचेंज? व्हाट डू वी डू इन द फॉरेन एक्सचेंज? एक्सचेंज करेंसी. एक्सचेंज करेंसी, राइट? तो बेसिकली हम क्या करते हैं फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली लेट्स से इफ आई गेस few of you are staying outside India and whenever you come to India, let's say if you are staying in USA and if you are coming back to India and you have some let's say cash or whatever it is, $1,000 है, ठीक है. So what you try to do is that you convert it into the Indian currency. So maybe you will be getting around 87,000 rupees. ठीक है, आपको 87,000 रुपीज मिलता है, ठीक है. सो this particular change right now you will be getting 87,000, but if you go back like let's say कि 5 साल पहले की बात करते हैं तो you might have got approximately 80,000 rupees. उससे पहले और जाते हैं 10-15 साल तो मे बी 60,000 rupees. So the currency values basically जो interchange values होते हैं ना, 1 USD is equal to 85 rupees, they keep on changing. Everyone is well aware of the same part कि they keep on changing. वो changes किस वजह से होते हैं? टेक्निकल रीजंस में क्या होता है? What is there in technical reasons is demand and supply. Demand and supply. But this demand and supply does not impact much. When we say does not impact much, as in कि इसमें बहुत ज्यादा movements नहीं मिलती है demand and supply. इतना movement मिलता है that we can make good profit. But if there is any kind of news related to the country, related to the country, that impacts the currency. वो फिर करेंसी को इम्पैक्ट करता है. जैसे कि इफ यू रिमेंबर दैट निर्मला सीतारमन once had said that rupee is not falling, Indian rupee is not falling, but US currency is getting stronger. ठीक है, US currency is getting stronger and because of that rupee is falling. नहीं समझ में आया? अब लेट्स से दैट समझ गए, आपको आ गया होगा औरों को नहीं आया होगा. देखो, if US market is doing well, as in that US as a country is doing well, their unemployment rates are decreasing, their GDP is growing compared to other countries or compared to their own countries, तो उसकी जो करेंसी होती है ना, USD, they will be getting stronger. They will be getting stronger. Means to buy USD, अगर किसी और करेंसी में हमें बाई करना होगा ना USD, we have to pay more money. वी हैव टू पे मोर मनी, ठीक है. ऐसा सीन होता है. तो एक नॉर्मल से हम लोग लेते हैं यूएसडी आईएनआर. दो पेयर है यहाँ पे, देर आर टू पेयर्स यूएसडी एंड आईएनआर, एंड देर इज टू नेम विच इज बेस करेंसी एंड कोटेड करेंसी. बेस करेंसी एंड कोटेड करेंसी. अब लेट मी नो विच इज बेस करेंसी एंड विच इज कोटेड करेंसी. अनिकेत, let me see who are attending this session first.
वसंत अभिषेक Brian, Aditya, Nandu, Niket, Ashish, Bansuri. Hey, how are you? Long time. Bharat, the Divyanshi. Bansuri is one of the students. I guess we have it from. I'm seeing her from 2022. Long back, long time. Kuldeep, Maitri, Navglom, Fan. Fan is also here. Nikki ma'am. Nikki ma'am is Acha, remember you. Pratik, Pratiksha, Prashant, Raj, Rajat, Ritesh Bhai, Saloni, Suresh Mishra, Swati. All right. Yeah. Expected people. हाँ प्रतीक भाई बहुत पुराने बहुत गुड टू सी यू गाइस इवन अटेंडिंग द सेशन 10 बारी अटेंड करने के बाद भी सो यूएसडी इज बेस एंड आईएनआर इज कोटेड करेक्ट तो यहाँ पे यूएसडी जो होता है वो बेस करेंसी होता है एंड आईएनआर इज द कोटेड करेंसी आई विल ब्रेक डाउन दिस फॉर यू ठीक है कोई भी आप पेयर देखोगे यूएसडी आईएनआर हो गया या फिर यूएसडी यूरो हो गया ठीक है या फिर यूएसडी जेपीवाई हो गया द फर्स्ट करेंसी इज योर बेस करेंसी द फर्स्ट करेंसी इज योर बेस करेंसी which means that we and the second currency is your quoted currency which means that we are buying the first currency we are buying the first currency by paying ठीक है उस यूरो यूएसडी होता है यूरो यूएसडी इज देयर एनीवे यूएसडी यूरो एनीथिंग इज फाइन सो वन सेकंड या वी आर बाइंग द फर्स्ट करेंसी इन एंड वी आर पेइंग इन द सेकेंड करेंसी ये जो करेंसी है ठीक है जैसे कि यूएसडी आईएनआर है तो वी आर बाइंग यूएसडी एंड पेइंग इन आईएनआर ठीक है हम यूएसडी खरीद रहे हैं डॉलर खरीद रहे हैं आईएनआर में पैसे देकर ठीक है हम सेकेंड में वी आर बाइंग यूएसडी एंड वी आर पेइंग यूरो वी आर बाइंग यूएसडी एंड वी आर पेइंग जापानीज येन ठीक है सो द फर्स्ट करेंसी इज कॉल्ड एज बेस करेंसी एंड द सेकेंड करेंसी इज कॉल्ड एज कोटेड करेंसी ठीक है over here let's say let's go for another pair like USD CHF so here in this one please let me know whether you are buying USD और CHF आप CHF बाय कर रहे हो या फिर USD बाय कर रहे हो सर पाउंड्स भी हाँ जी GBP USD वी आर बाइंग यूएसडी एवरीवन इज क्लियर कोई है यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया है कि हम यहाँ पे यूएसडी नहीं खरीद रहे हैं सीएचएफ खरीद रहे हैं याद रखना जो पहला करेंसी होता है हम वही खरीदते हैं ठीक है सीएचएफ इज स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रांस ठीक है तो वी आर बाइंग द फर्स्ट करेंसी ठीक है वी आर बाइंग द फर्स्ट करेंसी एंड वी आर पेइंग इन द सीएचएफ जो हमारा कोटेड करेंसी होता है ठीक है So this is your base and quoted currency. Now let me show you once for the charts. एक बार मैं आपको charts दिखा देता हूं. It's see. Anyone over here who is expert, like tech expert, when I say that you are well aware of the technical issues of the laptop. YouTube से देखकर information देने वाला नहीं उन्हें मालूम है because my laptop is not working वो troubleshoot कर रहा है I'm using another laptop. Okay. Forex. So if you'll see here, there are multiple pairs. इनको हम लोग क्या बोलते हैं करेंसी पेयर्स ठीक है यूरो यूएसडी दिख रहा है आपको ठीक है लेट मी डिलीट एवरीथिंग ऑन द राइट साइड यू कैन सी सम वैल्यूज ठीक है यहां पे आपको कुछ वैल्यूज दिख रही होंगी हियर अरे यार हियर यू कैन सी देयर इज 1.04567 61 व्हाट डज इट मीन क्या मतलब है इसका आई वॉन्ट वन स्टेटमेंट फ्रॉम हियर कि यूरो यूएसडी इज इक्वल टू 1.04561 अभी जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे है
व्हाट डज इट मीन? गुड रमित, गुड युवराज। बेसिकली सिंपल है ना, वी आर बाइंग यूरो, ठीक है, एंड पेइंग इन यूएसडी। सो बेसिकली टू बाई 1 euro we have to pay 1.05671 0.45671 यूएसडी, ठीक है। हम 1 यूरो खरीदने के लिए इतने यूएसडी हम पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है। एंड इफ वी चेंज द अनदर, गो फॉर अनदर पेयर, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में व्हाट आर वी, हाउ मच जापानीज येन वी आर पेइंग टू बाई 1 USD जेपीवाई राइट नाउ? कितना हमें जापानीज येन पे करना पड़ेगा टू बाई 1 USD? 149.297। नाउ टेल मी, जापानीज येन इज स्ट्रॉन्गर और इंडियन रुपी इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू यूएसडी? इंडियन रुपी स्ट्रॉन्गर है या फिर जापानीज येन स्ट्रॉन्गर है जब हम यूएस डी से कंपेयर कर रहे हैं फिलहाल? इंडियन स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज इन INR we have to pay only 87 rupees, ठीक है, and here they have to pay 114। so you can see this chart, right? अब ये चार्ट, many of you are well aware of this chart कि भाई what is happening, market is going down, कहाँ पे क्या trade and all candlesticks are the same। अगर मैं बैकग्राउंड में जो है उसको हटा दूं, the price whatever the price is here, if I remove that, nobody will be able to figure out कि किस चीज का स्टॉक का प्राइस है, whether it is stock price or whether it is currency price or which currency price। तो we work only on the charts when we are doing the technical analysis, but when we do the fundamental analysis, जब हम लोग fundamental analysis करेंगे ना, we also understand about the currency and their countries details or the data, ठीक है। the major question comes up, I hope we are clear for the base and quoted currency। बेस एंड कोटेड करेंसी का सभी को क्लियर है? प्लीज कंफर्म इफ देयर इज एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, इवन इफ यू आर बिगिनर और कुछ भी समझ में नहीं आया, लेट प्लीज आस्क मी। क्लियर? चलो, now the most important question comes up is that boss, forex trading is legal, illegal? बहुत क्लियर सी बात है भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज इलीगल। इंडियन गवर्नमेंट हैव नॉट लीगलाइज्ड इट, ठीक है, इलीगल है। बट फिर हम लोग, व्हाई आर वी लर्निंग फॉरेक्स, व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई हैव आई कम विद दिस फॉरेक्स मेंटरशिप? क्यों हम लोग सीख रहे हैं, कैसे ट्रेड करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स? सी, forex trading can't be, basically SEBI or RBI, they allow only whatever they can control, they can't control the forex market। भाई इंडिया, जीडीपी जो भी है इनका, इंडिया का, ठीक है, स्टिल इट इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी कंपेयर टू यूएस, राइट? तो यूएसए इज द लीडिंग कंट्री, यूएसए जो है लीडिंग कंट्री है, दो जापान प्रोवाइड्स फंडिंग टू ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, ठीक है। उसी पे आ रहा हूँ, यूवी ठीक है। but USA is a leading country, and not just USA but UK and all those countries are quite developed, ठीक है। तो वो एक ना, जैसे कि एक्सचेंज है, ठीक है, देयर मल्टीपल एक्सचेंज बाय द वे, so they manage this US thing, they manage this forex market, okay, and forex market is the biggest market in the world। स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, नॉट इवन यूएस स्टॉक मार्केट, इंडियन मार्केट जो है वो काफी छोटा है व्हेन वी कंपेयर टू द यूएस स्टॉक मार्केट, एंड यूएस स्टॉक मार्केट इज आल्सो स्टिल स्मॉलर देन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट इज द Manan, it's legal in Canada. So forex market is the biggest market in the world. क्योंकि यहाँ पे, if I compare, if 10 people trade in Indian market, there are 10,000 people who are trading in forex market। So when more people are trading in forex market, we will not have an issue for one thing। ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक इश्यू कभी नहीं हो सकती है, क्या है वो? What is that issue? Liquidity। एग्जैक्टली, लिवरेज तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लिक्विडिटी का मतलब कि इजीनेस टू बाई एंड सेल। जैसे कि गोल्ड है, यू कैन बाई इजीली एंड सेल इट, बट यू कांट सेल लैंड इजीली एंड बाई इट इजीली, राइट?
वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो आपकी लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, यू विल बी एबल टू बाय इट. नाउ लेट्स कम अप टू दिस क्वेश्चन, व्हाई इंडियन गवर्नमेंट हैज पर्टिकुलरली बैंड इट और मेड इट इलीगल, व्हाई दे डोंट अलाउ इट. इनका सिंपल सा कहना ये है ना कि भाई अगर तुम इंडिया में काम कर रहे हो, दे कांट इवन लीगलाइज इट, दे कांट इवन बी लाइक कि भाई ठीक है, लेट्स से द ब्रोकर विच वी आर यूजिंग इट, ऑक्टा एफएक्स फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, तो ऑक्टा एफएक्स से दे विल स्टार्ट चार्जिंग मनी कि भाई ब्रोकरेज, दिस इज द, बिकॉज इंडियन मार्केट में कैसा होता है, वी डोंट पे ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज टू द ब्रोकरेज फर्म, जैसे कि जो हम लोग 20 रुपया 10 रुपया ही देते पर ट्रेड, वी गिव इट टू द ब्रोकर्स, बट दे चार्ज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. सेबी विल चार्ज, एनएससी विल चार्ज, गवर्नमेंट चार्जेस लाइक अप्रोक्सीमेटली 4 चार्जेस, ठीक है, इतना ज्यादा चार्जेस होते हैं. सो दे विल नॉट बी टेलिंग यू कि भाई ऑक्टा एफएक्स को बोल देंगे कि भाई ये इसका इतना चार्ज है करके ये पे कर लो तुम करो, दे विल नॉट डू दैट ऑल्सो, बिकॉज दे कांट कंट्रोल द मार्केट, ठीक है. सो दे सिंपली बैन इट. उन्होंने बोला बैन करने का एक पहला रीजन कि दे कांट कंट्रोल इट, सो दैट इज द रीजन दे हैव बैन. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट, and which I feel the most important but still not that great reason, इफ वी आर लूजिंग इन आईएनआर, जैसे कि आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आप आईएनआर में लूज करोगे तो व्हाट विल हैपन, योर लॉस विल बी समवन एल्स प्रॉफिट. आपका जो लॉस होगा वो किसी और का प्रॉफिट होगा, राइट. दैट विल बी ऑल्सो इन आईएनआर एंड दैट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड इंडियन, इन इंडियन मार्केट ओनली. सिर्फ इंडियन करेंसी में ही होता रहेगा, इवन दो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, दे आर, इफ दे आर ऑल्सो ट्रेडिंग इन द मार्केट, they are also making money in the terms of INR only. बाद में वो conversion होता है and all those things is a different part. But they are also making money in Indian rupee. तो इंडिया से बाहर नहीं पैसे जाता है when someone is losing money. But if you are trading in forex market, but if you are trading in forex market, USD में आपकी ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, USD is the major currency. दो करेंसी कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, but again at the end of the day every conversion happens from the perspective of USD. ठीक है, आप आईएनआर में कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से कि वी हैव द ऑप्शन टू चूज आवर ओन करेंसी, ठीक है, तो यूएसडी में अगर आप करते हो, इफ समवन इज लूजिंग मनी, ठीक है, लेट्स से कि आई हैव लॉस्ट, लेट्स से 1 million USD, समवन विल बी मेकिंग दिस प्रॉफिट 1 million USD, या फिर डिवाइडेड प्रॉफिट होगा, वो दूसरी कंट्री का भी हो सकता है. हु विल पे दिस यूएसडी, कौन पे करेगा, बैंक्स. अगर मैं ऐड कर रहा हूं अपना पैसा अकाउंट में, ठीक है, तो वो यूएसडी में एडेड हो रहा है, तो बैंक्स कन्वर्ट दिस, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन दैट कि बैंक्स विल बी लूजिंग 1 million USD, ठीक है. इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है दैट विल बी डिक्रीजिंग. तो ये एक रीजन डाल देते हैं कि इफ वी लूज मनी दैट विल इम्पैक्ट द फॉरेक्स रिजर्व एंड द फॉरेक्स रिजर्व विल गो डाउन, एंड दैट इज द रीजन दे डोंट अलाउ अस टू ट्रेड. So basically the game is all about, or the understanding is all about कि फॉरेक्स रिजर्व कम नहीं हो इसकी वजह से, फॉरेक्स रिजर्व कम नहीं हो इसकी वजह से वी आर बैनिंग, वी आर मेकिंग इट इलीगल, ठीक है. फर्स्ट रीजन वाज दे कांट कंट्रोल द मार्केट, वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते. यू आर सीइंग दिस इंडियन मार्केट, राइट, जब मर्जी आ रहा है लॉट साइज बढ़ा रहा है, जब मर्जी आ रहा है एक्सपायरी चेंज कर रहा है, जब मर्जी आ रहा है नए इंडियन एंडाइसेस डाल रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग इट, बट दे कांट कंट्रोल द फॉरेक्स मार्केट, सो दे आर विल बी लाइक दिस. If we go back in the 1980s when Rajiv Gandhi was the prime minister, okay, so that point of time weed was legal. Before him, weed was legal, but one pharma company came and they had a big deal, and he that company made a, this is a story or maybe the not story but the reality, but I'll tell you in a simpler words, ठीक है, उनके बीच में डील हुई कि भाई you have to ban the production of weed. Okay, a limited production of weed will be done, and जैसे कि होता है ना कि in some states, what do we say that चरस होता है, क्या होता है, hash, whatever it is. Okay, the production is given based on the contract with, जितना बोला जाता है उतना ही करना होता है, ठीक है, you can't grow more than that, ठीक है, and growing at your own place or at your home is considered as illegal. Recently there was a case, one couple from Bangalore had posted a picture and background में एक weed का plant था, केस हो गया, ठीक है.
So if that pharma company would have not made this the deal कि भाई weed should not be legalized, अगर वीट को वो लीगलाइज रहने देते तो उनकी मेडिसिन की प्रोडक्शन जो होती वो इम्पैक्ट होती, सेल्स इम्पैक्ट होता, सो दे मेड दिस कंडीशन, आफ्टर दैट दे बैंड इट, नाउ नो गवर्नमेंट कैन रिमूव दिस बैन, वो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल रीजन, अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि दे आर टेलिंग अस कि यूएसडी में आपको ट्रेड नहीं करना, यू शुड नॉट बी ट्रेड। सो व्हाट दीज ब्रोकर्स डू, ठीक है, ये ब्रोकर क्या करते हैं, लेट्स आई पर्सनली यूज एक्सनेस, I'll share the account how, like in next session how do we open the account, I'll share a video for the same, okay। तो एक्सनेस क्या करता है ना कि दे हैव मल्टीपल मिडिल मैन इन इंडिया एंड इन मेनी अदर कंट्रीज वेयर द फॉरेक्स ट्रेडिंग इज बैंड, ठीक है। दे हैव मिडिल मैन, लेट्स से वन ऑफ देयर मिडिल मैन इज एको इंडिया। एको इंडिया इज अ फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी विच मे बी डीलिंग इन द लोन्स एंड ऑल। तो ये कंपनी जो ब्रोकर है, दे हैव टाइड अप विथ दीज ब्रोकर्स, सॉरी दीज मिडिल मैन, ठीक है, वो डील्स विन आईएनआर, वो डील करते हैं आईएनआर में। इट इज इट ऑल राइट इफ आई यूज प्राइम एज आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस, I guess if they are good, I guess they might be available in the Canada because I guess Exynos doesn't work in Canada. I'm not sure of the same, but आई नीड टू क्रॉस चेक बिकॉज कुछ कंट्रीज में वो काम नहीं करती हैं, ठीक है, जैसे यूएसए में दे डोंट वर्क आउट। सो वो क्या करते हैं कि मिडिल मैन डाल रखे हैं इन कंट्रीज में, ठीक है, दे हैव पुट मिडिल मैन हु डील्स एवरीथिंग इन आईएनआर, वो सारी चीजें जो है वो डील करती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, यू शुड नॉट बी ट्रेडिंग इन यूएसडी, यूएसडी कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, दैट इज अ सिंपल कंडीशन, ठीक है। तो वी विल बी लाइक कि भाई ठीक है, वट एवर यू से विल एक्सेप्ट इट। तो व्हाट दीज पीपल डू, एंड लेट्स से कि हम यहाँ पे ट्रेडर्स, ठीक है, सो वी हैव एन ऑप्शन, लेट्स से कि अगर मुझे, हाउ आर एम आई गोइंग टू स्टार्ट माई ट्रेडिंग, आई हैव टू डिपॉजिट मनी, मेरे पास आईएनआर में है, तो मैं क्या करूंगा, डिपॉजिट पैसे कैसे करूंगा, ठीक है। तो लेट मी शो यू दिस प्रोसेस एक्चुअली। वन मिनट। So you can deposit money using UPI और I'll just show it to you for मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा ये वाली चीजें, बट लेट मी जस्ट, ओके। सो लेट्स से कि इफ आई वांट टू डिपॉजिट मनी आई विल गो टू डिपॉजिट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विल हैव मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपका यूएसडी, ये क्रिप्टोज के हैं, ठीक है, यूएसडीटी है में ऑप्शंस हैं, देन यूपीआई इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक है, यूपीआई आपके लिए बेस्ट है बिकॉज वेन एवर यू विल बी डिपॉजिटिंग द मनी, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से कि यूपीआई आईडी हो गया या फिर यूपीआई एक्सप्रेस, दे विल टेक अप्रोक्सीमेटली इंस्टेंटली मैक्स टू मैक्स 3 to 4 minutes, बट एट टाइम्स कुछ इशू, टेक्निकल इश्यूज की वजह से इट गोज अप टू आवर, अदरवाइज इट विल बी डन इंस्टेंटली। तो यू कैन डिपॉजिट योर मनी इन यूएसडी और TRC20 और ERC20. Never use credit card. The only mistake I had done is that I deposited money using credit card. That is the worst thing I had done it. So never do that. Binance आप यूज कर सकते हो, बिटकॉइन यूज कर सकते हो, दीज आर द पेमेंट गेटवेज जो आपको जरूरत नहीं है यूज करने के लिए, बिकॉज अगेन दे विल बी चार्जिंग सम कन्वर्जन चार्जेस, सो यू डोंट नीड टू यूज नेट सेलर एंड स्क्रीन, यू कैन गो विद द ऑनलाइन बैंकिंग, देन वॉलेट वगैरह आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बेस्ट क्या है, यूपीआई एक्सप्रेस और यूपीआई आईडी और बैंक, सॉरी ऑनलाइन बैंक, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन गो अहेड एंड यूज इट।
आप विड्रॉ किस में कर सकते हो? The best option, you want to get it in your bank account, you can get it in your bank account. You want to get in your any of the crypto wallet, you can get it into your crypto wallet. ठीक है? तो let's say that कि if I have to deposit money, for an example, let's say I am depositing, let me show you in, okay, let's say I'm depositing 1000 rupees. ये वाला काम नहीं करता है कुछ टाइम के लिए कभी कभी, बट अगेन लेट मी जस्ट, not working as of now. तो ये वाला वर्क नहीं कर रहा है, तो विल गो एड विथ अनदर ऑप्शन, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो यूपीआई एक्सप्रेस जो है वो यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। सो दिस इज द यूपीआई एक्सप्रेस वेयर आई नीड टू डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट विच इज 11,000। तो 11,000 लेट्स से आई एम डिपॉजिटिंग। I'll show you the process because you know this process is quite important for you to understand so that आपको ज्यादा परेशानी ना हो बार बार। once you scan this and पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप फोन में करोगे तो देयर विल बी एन ऑप्शन कि आप डायरेक्टली जो भी आपके इंस्टॉल्ड एप्स रहेंगे ना उसमें ही सीधा हो जाएगा, ठीक है। ओह शिट, आई डिड अ रॉन्ग पेमेंट। गलत यूपीआई आईडी से मैंने पेमेंट कर दिया, पैसे फंसेंगे। टू डू फ्रॉम अनदर पेमेंट, एनीवे देखते हैं पेमेंट होता है या नहीं होता है, बिकॉज मैंने गलत यूपीआई आईडी से कर दिया पेमेंट। सो मेक श्योर दैट कि आप जो मैंने यूपीआई आईडी एंटर करी थी ना, आई हैव टू पे थ्रू दैट यूपीआई आईडी ओनली, ठीक है। अगर मैं किसी और यूपीआई आईडी से पेमेंट कर रहा हूँ, ओके इट्स डन। ओके इन्होंने कंसीडर कर लिया, दैट इज वेल एंड गुड इनफ यार। अच्छा हुआ, ठीक है। सो द मनी विल बी गेटिंग एडेड टू माई अकाउंट, द मनी हैज बीन एडेड। अब देखो आई कैन ट्रेड इन आईएनआर, ठीक है। जो भी मेरा प्रॉफिट्स वगैरह होगा दैट विल कम इन आईएनआर, एंड इफ आई वांट टू विड्रॉ दिस मनी, ठीक है, आई कैन विड्रॉ थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। यहाँ पे मुझे मेरे पैसे निकालने हैं, आई विल पुट 11,000 एंड आई विल बी एबल टू विड्रॉ दैट, ठीक है। नथिंग, जीरो चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा अपना विड्रॉ कर सकता हूँ। अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मैं आपको डिपॉजिट और विड्रॉल का क्या क्यों समझाना चाहता था, लेट्स अंडरस्टैंड। तो एक और ईमेल दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू वन ईमेल एज वेल। 1 सेकेंड, जो मैंने डिपॉजिट करा था पैसे, ठीक है, तो उसका एक ईमेल आप देख लो, so that the process will be easy for me to make you understand. So if you see this, your account has been debited करके, available balance and all those things, 11,000 rupees। कहाँ पे मैंने ये दिखाया नहीं इन्होंने, 1 सेकेंड, दे शुड बी शोइंग अस कि कहाँ पे मैंने पे कराया, डेबिटेड बाय। ओके तो यहाँ पे मेरे को नॉर्मल मैसेज में आया हुआ है, ठीक है, कि एको इंडिया को मैंने अपना पैसा भेजा है, ठीक है। नाउ ओवर हियर लेट्स हैव अ लुक। तो प्रोसेस कैसे हुआ? एज अ ट्रेडर, लेट्स से I wanted to deposit money. I was using Xness. I made a request through UPI Express, ठीक है। इन्होंने एक्सनेस ने मिडिल मैन जो भी है एको, ठीक है, उसको बोला कि रोशन वांट्स टू डिपॉजिट मनी, ठीक है। तो आई डिपॉजिटेड, आई सेंट 11,000 रुपीज टू एक्सनेस, सॉरी टू एको, ठीक है। मैंने एको में वो 11,000 रुपए जो प्रोसेस से मैंने भेजे, ठीक है। वंस एको हैज रिसीव्ड द मनी,
वंस इको हैज रिसीव्ड द मनी, दे विल कंफर्म एक्सनेस कि भाई रोशन ने 11,000 रुपए भेजे, मुझे मिल गए. नाउ यू कैन क्रेडिट दिस अमाउंट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट. नाउ यू कैन क्रेडिट दिस अमाउंट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट. तो मेरे एक्सनेस में ये जो 1-2 मिनट का जो प्रोसेस होता है ना, इन दैट द कंफर्मेशन विल बी कमिंग. ठीक है. तो 11,000 रुपए मेरे एक्सनेस अकाउंट में क्रेडिट. नाउ टेल मी, इन माई फोन पे द ट्रांजेक्शन नेम इज कमिंग एको इंडिया. एनीवेयर इट इज रिटन फॉरेन ट्रांजेक्शंस. कहीं पे ये लिखा हुआ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए है, लिखा हुआ है? डिड यू सी एनीवेयर? नो, राइट. कहीं पे भी आपको फॉरेन ट्रांजेक्शंस का मेंशन नहीं किया गया, राइट. लेट्स टॉक अबाउट द विड्रॉवल. तो अगेन लेट्स गो बैक टू दिस द सेम प्रोसेस. आई वॉन्ट टू विड्रॉ मनी. आई वेंट 11,000 मैंने यहां पे मुझे विड्रॉ करना है फॉर एन एग्जाम्पल. कंटिन्यू करा एंड देन कंफर्म. ठीक है. मुझे एक आएगा मैसेज की कंफर्मेशन के लिए या फिर जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, एंड देन आई विल डिपॉजिट द मनी. तो विड्रॉवल कैसे काम करता है यहां पे? रिक्वेस्टेड एक्सनेस कि भाई आई वॉन्ट टू विड्रॉ मनी, 11,000 रुपीज जो है मुझे विड्रॉ करना है. दे विल टेक द कंफर्म विद द वेरिफिकेशन, उन्होंने कर लिया. देन दे विल सेंड द नोटिफिकेशन टू देयर मिडिल मैन एको कि एको अभी रोशन हैज रिक्वेस्टेड 11,000 रुपीज फॉर विड्रॉल, काइंडली सेंड दिस अमाउंट ऑफ मनी टू दिस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट. वो आप इस बैंक अकाउंट में पैसे भेज दो. तो एको क्या करेगा? कंफर्म कर लेगा. वंस दे हैव कंफर्म्ड कि ओके फाइन आई विल बी सेंडिंग, तो ये 11,000 मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे एंड एको विल बी सेंडिंग मी 11,000 रुपीज. आई विल रिसीव इट इन माई बैंक अकाउंट विद द नेम ऑफ एको इटसेल्फ. और मे भी हो सकता है कोई दूसरा मिडिल मैन आएगा, वो हो जाएगा. तो विद दिस होल प्रोसेस, when I'm depositing money and withdrawing money, जब मैं डिपॉजिट कर रहा हूं एंड विड्रॉ कर रहा हूं, द नेम विच इज कमिंग, जिसके थ्रू मैंने डिपॉजिट करा, जिसके थ्रू मुझे पैसे मिले हैं, इट्स इंडियन कंपनी. नोवेयर इट इज इन्वॉल्व दैट फॉरेक्स इज मेंशन्ड. ठीक है. अब यहां पे समझो कि हाउ डू द ब्रोकर इज डीलिंग विद दिस. हो सकता है दे मल्टी, लेट्स से समवेयर अराउंड 10,000 पीपल इन इंडिया आर यूजिंग एक्सनेस एज ऑफ नाउ, टाइम फॉर द टाइम मे बी 10,000 और 20,000, वट एवर द पीपल आर यूजिंग. अब ये जो लॉस प्रॉफिट का चक्कर होता है विच एवर विच हैपनिंग राइट नाउ अमॉन्ग द इंडियन ट्रेडर्स, ये सारे जो ये मिडिल मैन के बीच में पैसे रहेंगे. एवरीथिंग विल बी हैपनिंग इन बिटवीन द मिडिल मैन. ठीक है. ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया, एंड मे बी एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द क्वार्टरली और फाइनेंशियल ईयर, दे विल बी गिविंग कि दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट द ब्रोकर हैज मेड थ्रू ब्रोकरेज, और जो भी है, जो बचा हुआ पैसा होगा फिर उनको भेज दिया जाएगा. So everything is going in and out between the Indian middle company, मिडिल मैन कंपनी जो है उसके बीच में सब चीज हो रहा है. हमें क्या हुआ? हमारा लॉस हो गया तो भी इंडियन जो फर्म था उसको मिला गया था पैसा. प्रॉफिट हुआ तो भी उसी ने भेजा. यहां पे कहीं पे भी आपको फॉरेक्स मेंशन नहीं है. अब पॉइंट ये है ना कि चलो ये तो मुझे डिपॉजिट का समझ में आ गया कि फाइन विल बी एबल टू डू इट. विड्रॉल भी इजीली है. And the fastest withdrawal which I have received is that after placing the request in maybe in 2 minutes. That is the time they take it up. ठीक है. Again, coming to that point as well. It's like P2P transactions. Right. सर लेकिन गवर्नमेंट ये सख्त तो करेगी ना कि हम एको को इतना पैसा क्यों देते हैं करके. आ रहा हूं उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं. टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शंस. अब ट्रांजैक्शंस जो हो गए ये क्लियर है सबको, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल का. ये आईएनआर में कर रहे हैं, कहीं पे हमारा फॉरेक्स का मेंशन नहीं है, तो इट्स फाइन फॉर अस. बिकॉज द प्रॉब्लम विद देम इज दैट दे शुड नॉट बी, वी शुड नॉट बी ट्रेडिंग इन द फॉरेक्स. तो हम कहीं पे फॉरेक्स मेंशन ही नहीं कर रहे हैं. द एक्सनेस डजंट शेयर आवर डेटा विद द इंडियन गवर्नमेंट. हाँ जी, हाँ जी, डू नॉट वरी कोमल, आई विल हेल्प यू आउट विथ एवरीथिंग, डू नॉट वरी ऑन दैट पार्ट. Make sure that everyone you are opening the Exness account link with the one which I am sharing it, because it will be easy for the issues whichever you will be facing it. क्योंकि कभी कभी issues होते हैं तो it will be easy for you to face that. Allow me a minute. ओए. Okay. So is Delta Exchange good? आशुतोष भाई, आई हैव नॉट यूज डेल्टा एक्सचेंज तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आई क्रॉस चेक वंस. सर आप ओके.
तो नेक्स्ट क्लास में मैं डेल्टा एक्सचेंज में देख लेता हूँ एक बार कैसा है, क्या है उसके सारी इंफॉर्मेशन। अब देखो, अब पॉइंट है कि someone has asked कि if we are sending a lot of money to echo, जब हम आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें क्या मेंशन करें? ठीक है, इफ द डेल्टा एक्सचेंज इज वेरी हाई ब्रोकरेज, तब क्यों ही जाना है, उसमें हम क्या मेंशन करें इन आईटीआर? सो फर्स्ट थिंग इज दैट इफ इट इज इन लॉस, ठीक है, आप उस लॉस को ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ठीक है, यू कांट डू कैरी फॉरवर्ड करने या फिर कुछ भी वैसा नहीं कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मैं दोनों तरीके बताता हूँ, टैक्स नहीं पे करना है, 10 लाख के प्रॉफिट तक हो गया आपका, आप यू डोंट वांट टू पे द टैक्स, इट्स कंप्लीटली फाइन। 10 छोड़ो, 20 40 जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉ द मनी इन द बाइनेंस और मे बी इन सम अदर करेंसी, अदर यूएसडीटी, कोई दिक्कत नहीं है। सो इलीगल मनी और हवाला का पैसा जो होता है ना, वो चलता ही आ रहा। ठीक है, सो स्टिल यू कैन गो फॉर द सेम, बट अगेन लेट्स से कि यू वांट टू पे द टैक्सेस, दैट्स व्हाट आई डू इज दैट, मैं क्या करता हूँ, टोटल मनी डिपॉजिटेड to Echo and total withdrawal from Echo. I calculate on that and I write it as a business income. I write it as a business income कि भाई इतने का चीज गया, इतने का आया मेरे को। ठीक है, सिंपल सा चीज में करके आई फाइल माई आईटीआर ऑन द सेम। वट एवर द मनी आई एम मेकिंग, आई राइट इट एज अ अदर सोर्स ऑफ इनकम, नॉट इवन बिजनेस इनकम, बिकॉज बिजनेस इनकम में फिर आई हैव टू पे द जीएसटी इफ इट इज क्रॉसिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो आई राइट इट एज अ अदर सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, कि मैंने इतना पैसा दिया, इतना पैसा मिला मेरे को, तो मेरे अदर सोर्स ऑफ इनकम में मैं डाल के अपना टैक्स भर देता हूँ। ठीक है, दैट्स व्हाट आई डू इट। समटाइम्स आई फील दैट कि भाई मुझे टैक्स पे नहीं करने का मन है, ठीक है, तो आई मेंशन इट एज अ लोन, कि मैंने एको जो विड्रॉल करता हूं मैं, एको से मैंने लोन लिया है, ठीक है, इतना पैसा मेरे को लोन मिला है। ठीक है, या फिर एंड वट एवर द मनी आई एम डिपॉजिटिंग, आई राइट इट एज अ रीपेमेंट। मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, बट अगेन आई प्रीफर टू पे द टैक्सेस rather देन हाइडिंग इट, बिकॉज ठीक है ना यार, लेने दो, भिखारियों को चाहिए पैसा तो दे देते हैं। जिंदगी में आप कमाते, सी द प्रॉब्लम विद द टैक्सेशन पार्ट इज दैट स्पेशली इन द ट्रेडिंग फील्ड, let's say someone, any one of you, down the lane, you are making 10 crores of profit, you are paying 4.5 CR as taxes somewhere close to that, इतना आप टैक्स पे कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर यू मेड अ लॉस ऑफ 5 CR, लेट्स से 8 CR, यू आर स्टिल इन प्रॉफिट, 2 CR का 2 साल में प्रॉफिट है, बट आर यू एक्चुअली इन प्रॉफिट? क्योंकि हाथ में आपके तो 5.5 CR बचा था, और अगले साल लॉस हो गया आपका 8 CR का, यू आर इन लॉस ऑफ 2.5 CR। कोई आपको रिफंड तो मिलने वाला है नहीं यहाँ से कि भाई इस बार इसने लॉस करा है तो थोड़ा पैसा इसको दे देते हैं। तो ये वाली चीज जो है ना, तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो दैट्स हाउ द फॉरेक्स मार्केट वर्क्स आउट, लीगल एंड इलीगल पार्ट में। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया? विच मार्केट इज इजी एंड बेटर, इंडियन और फॉरेक्स, विच वन वी शुड सी? आई प्रीफर फॉरेक्स मार्केट, बट इसके प्रोज एंड कॉन्स भी मैं बताऊंगा। लॉट ऑफ प्रोज आर देयर, ओनली कॉन इज द माइंडसेट। सर लेकिन ऐसा आप कर सकते, सब थोड़ी दिखा पाएंगे, लेकिन ऐसा आप कर सकते सब थोड़ी दिखा पाएंगे। भाई सबके लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि चुपचाप जितना आया है, इनकम हुआ है, इफ इट इज इन द टैक्सेबल लिमिट में आपका आता है, तो आप पे करो उसको। ठीक है, सो यू स्पेशलाइज इन फॉरेक्स, व्हाट्स योर कंफर्ट जोन? माई कंफर्ट जोन, इफ आई टॉक अबाउट, मुझे बहुत आराम से ट्रेडिंग करने का मन है, तो आई स्टिल प्रिफर फॉरेक्स मार्केट, देन इक्विटी, and then options. Options I keep it and the last of the time being, because मैं लास्ट में क्यों रखता हूँ ऑप्शंस को? क्योंकि द प्रॉब्लम विद द ऑप्शन मार्केट इज दैट बहुत इरिटेटिंग है यार, बहुत इरिटेटिंग लगता है कभी कभी। एंड इक्विटी मार्केट आई फील इट्स बेस्ट, बिकॉज कोई दिक्कत नहीं है, लॉस भी कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है, स्ट्रेस भी नहीं रहता है ज्यादा, कुछ भी वैसा नहीं रहता है। फॉरेक्स मार्केट में 24 आवर्स है, तो यू विल बी like you'll be having one issue is that over trading happens a lot in the forex market. That is the problem. How Echo handles forex market, since they handle just the money part भाई। बट जैसे कि एक होता है ना, लेट्स से कि बैंक, हम अपने पैसे से क्या कर रहे हैं, बैंक को थोड़ी लेना दे रहे हैं, बैंक को हम पैसे दे रहे हैं, वो हमें वापस दे रहा है जब भी हमें जरूरत है। तो लेट्स से दैट Echo इज अ बैंक फॉर द एक्सनेस, दैट्स इट। सर विच इज प्रॉफिटेबल, इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स फॉर बिगनर्स? देखो, देर इज नो आंसर फॉर दैट, इट्स ऑल अप टू यू।
Indian market is also profitable. Forex is also profitable, not from the perspective of beginner, but for everyone. Because the point is that when we are trading in this market, ठीक है, इंडियन मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, लॉसेस तो सभी को होते हैं, प्रॉफिट भी सभी को होते हैं. इधर टुडे टुमारो, एक दिन 10 दिन लॉस करोगे, एक दिन तो प्रॉफिट करोगे ही करोगे ना. बट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट कि भाई व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द फॉरेक्स मार्केट यू कांट टेल कि यू विल बी प्रॉफिटेबल. हाँ, एक चीज अलग अलग बात है. इफ यू कैन बी प्रॉफिटेबल ऑल द डेज. क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में कैसा है ना, लेट मी शो इट टू यू. क्यों मैं बोला ये लाइन, अभी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. लीव द रूल्स पार्ट. ठीक है, आप सारे रूल्स वगैरह छोड़ दो. आपने मान के चल लो, यहां पे आपने, नॉट यहाँ पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू परचेस 17 अक्टूबर को आपने यहां पे बाय करा, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया. ठीक है, काफी नीचे गिरा. एंड देन आफ्टर सम टाइम आपने एक साल के बाद मार्केट फिर से आ गया ऊपर, इसी प्राइस पे आ गया, ऊपर प्रॉफिट गया. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे प्राइस जो है ना, हमेशा करेंसी मार्केट है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी कि भाई आज जो प्राइस है वो कभी नहीं आ सकता, आ सकता है. बट ऐसा नहीं करना होता है हमें कि भाई फ्रॉम हियर यू आर वेटिंग टिल हियर. आपका जो एसएल है चुपचाप लेकर जाओ. इवन नॉर्मली अगर हम दिन की भी ट्रेडिंग की बात करें, ठीक है, लेट्स से कि ये तो काफी सालों की बता दी मैंने. मैंने खरीदा लेट्स से कि ऑन, लेट्स से आई परचेस्ड ओवर हियर ऑन 25th Feb. ठीक है, 6 फेब को मैंने खरीदा. ठीक है. एंड आफ्टर दैट मार्केट वाज डाउन फॉर अ वीक, बट एक हफ्ते के बाद मार्केट ऊपर आ गया. दैट इज स्विंग ट्रेडिंग वी कैन डू. तो मुझे प्रॉफिट हो गया. दैट वी डू इट इन द मार्केट. हमने यहाँ पे खरीदा व्हेन वी आर होल्डिंग द ट्रेड. वी डोंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू होल्ड द ट्रेड. कुछ नहीं पे करना होता. लिवरेज इज वेरी गुड ओवर योर. ठीक है. सो दैट इज द बेनिफिट वी हैव. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द माइंडसेट सर, विच इज हार्ड टू लर्न, स्टॉक और फॉरेक्स. अगेन इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. देखो, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई. इफ यू टॉक अबाउट कि इफ यू रिमेंबर दैट योर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम वाज क्वाइट टफ. ठीक है, बट अब फर्क नहीं पड़ता. रिमेंबर दैट 19 का टेबल, 13 का टेबल याद करने में दिमाग खराब हो जाता था. ठीक है, कंफ्यूजन होती थी. बट नाउ अब इतने बड़े हो गए, इतना टाइम हो गया है कि यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि क्या होता. हाँ, 13 1 13 26 39, you will be able to remember that. Same goes with this. So once you get into this, you will be able to understand this market quickly. सो ये तो आपने बताया था कि डिपॉजिट कैसे करना है फॉरेक्स में, बट ट्रेडिंग पार्ट हाउ टू डू, विच वेबसाइट और ऐप इज. दिव्यांशी एक ही दिन में सारी चीजें सीख थोड़ी लेंगे. द मेंटरशिप इज फॉर 6 मंथ्स. सिर्फ फॉरेक्स में झंझट कम है क्या? हाँ यार, एक्चुअली देखा जाए ना, बहुत कम है. व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द इंडियन ब्रोकर्स एंड ऑल, इट इज क्वाइट लेस. ठीक है. झंझट. Lavina, here I guess you are in the SMAT session and you are not attending the session from last two sessions. I have not found you. Anyway, moving ahead to the next part of this. So illegal लीगल का हमें समझ में आ गया है, बेस करेंसी क्या हो गया वो समझ में आ गया. एक लास्ट पार्ट हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, basically you have understood about the deposit and withdrawal as well. So let's understand about the demat account which you will be using it. ठीक है, आपको किस तरीके से यूज करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ. तो यू आर गोइंग टू यूज एक्सनेस. फ्री अकाउंट ओपनिंग है. इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली जस्ट 1 to 5 minutes टू ओपन योर अकाउंट. ठीक है. कैसे ओपन होता है, मैं बस एक डेमो दे देता हूँ, बाकी आई सेंड यू द लिंक. ठीक है. एंड यूज दैट टू गो हेड एंड ओपन. अब जैसे कि आई सेंड यू द अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट आएगा यहाँ पे आपको. लेट्स से मैं जस्ट रैंडमली आई पुट समवन्स डिटेल. इंडिया, योर ईमेल एड्रेस में लेट्स से r@gmail.com. gmail.com. ठीक है. लेट्स से पासवर्ड क्या, ठीक है, पासवर्ड भी डाल दिया कुछ कुछ. यहाँ पे आई सेंड यू पार्टनर कोड, मेक श्योर टू एंटर दैट पार्टनर कोड, देन कंटिन्यू. सम एरर हैपेंड. क्या एरर हैपेंड हो गया? चेंज द सिंगल आईडी. वेरीफाई करेगा. लेट मी जस्ट लॉग आउट दिस वन एज वेल. एंड अगेन आपको लगता है यार कि मुझे ना टैक्सेशन वगैरह के झमेले में नहीं पड़ना, तो मे बी इफ योर मॉम इज
हाउसवाइफ और समवन हु इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इनकम सोर्स, देन आप उनके आइडेंटिटी से कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। अरे @gmail.com। यहाँ पे I'll send you a partner code. Make sure to click on this. You are not a citizen of US. Okay, your account is open. Just continue करना है क्या, कुछ और इशू है? इमेज ऑलरेडी कनेक्टेड। अरे यार, ठीक है, आपका अकाउंट ओपन हो गया। एंड यू हैव गॉट सम डेमो अकाउंट एज वेल। तो आप डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे कि अभी बिटकॉइन में करना है, ठीक है, तो यू कैन डू दैट। आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हो। whatever it is, you can just go ahead and do it। कंफर्म सेल कर दिया। 29 USD ये जो कट हुआ है, ये ब्रोकरेज है, विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन। अभी इट्स नॉट दैट, अभी और प्रोसेस है थोड़ा सा। यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन जस्ट 1 मिनट, ठीक है। बट उसके अलावा और जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, जो डिटेल्स वगैरह चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। तो वेन यू विल कम इन टू द मेन अकाउंट, जब आप मेन अकाउंट पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि प्लीज फिल इन योर प्रोफाइल। अभी भी आपके पास ऑप्शन है डिपॉजिट, यूपीआई एंड ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। बट ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराने जरूरी होते हैं। तो मेक श्योर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो कंप्लीट योर प्रोफाइल में इट विल बी कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, वेरिफिकेशन कोड, फोन नंबर आएगा। यहाँ पे ऐड प्रोफाइल में और ऑप्शंस आते हैं जिसमें आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मेक श्योर टू पुट योर एड्रेस विच इज देयर इन योर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो होगा आपका, सेम एड्रेस, मेक श्योर टू पुट दैट। एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ जस्ट 4 to 5 minutes, दे विल कंफर्म इट एंड दे विल गिव द अकाउंट टू यू। मीन्स अभी भी आप यू कैन स्टार्ट रीडिंग, जैसे कि यू सॉ राइट कि अभी इसमें हमने जस्ट आपके सामने अकाउंट में ट्रेड डाला एंड शॉर्ट सेल करा, $1-2 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। दैट्स हाउ द थिंग्स विल बी। अंडरस्टूड एवरीवन? दो, एक बार मैं आपको एक डिफरेंट वीडियोस शेयर करूंगा, ठीक है, वेर आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू क्रिएट योर एक्सनेस अकाउंट, ठीक है। तो, ना ना, इफ यू ऑलरेडी हैव अ एक्सनेस अकाउंट देन यू डोंट नीड टू मेक इट भाई, और जरूरत नहीं है। हाँ, देन यू डोंट नीड टू मेक इट अप। ओके ओके, डन। लवीना, सर मजा आया आज की क्लास में। मजा आया आज की क्लास में, काफी टाइम के बाद मैं फॉरेक्स ले रहा हूँ, काफी टाइम हो गया। मुझे भी अच्छा लगा क्लास लेके। आई विल ट्राई टू टेक द रेगुलर क्लासेस। Anyone is having any kind of doubts from the today's session, please do let me know before we wind up. We'll meet on next Saturday for the Forex. Tomorrow you'll have live trading for the equity market. So current Smart Batch and all the people of PTM will have a live trading session. Your health is good, sir? Yeah, it's good. Recording, shall be sharing it. Record करा हूँ ना? Just let me cross check. Yeah, it is recorded. Referral code I'll be sharing it. Do not worry on that part. Not just अभी कोई जल्दबाजी नहीं है ओपन करने के लिए. Just give me some time ना. I'll send it to you. Just let this options get over. I've told Gagan to complete option at the earliest. ठीक है, तो once that is over, we'll have the session. अदरवाइज कम से कम 2 की जगह 3 से 4 रख लूँ तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सर टुमारो एग्जाम है, अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो एग्जाम दो जाकर। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। हाँ जी, एक पिछला सेशन का तो नहीं मिल पाएगा, एज इन दैट की लास्ट टू लास्ट वाला सेशन का नहीं है रिकॉर्डिंग। ओके, बिकॉज दैट गॉट डिलीटेड फ्रॉम द जूम इटसेल्फ। सर आई एम फ्रॉम करंट ऑप्शन। सर डाउट कब रखोगे ऑप्शंस की? आई विल चेक विथ गगन, ठीक है, बिकॉज ही हैज बीन टेकिंग द सेशन। अगर आप स्केलर की बात कर रहे हो तो आई कैन कीप अ डाउट आफ्टर अ वीक, बिकॉज आई वांटेड यू टू बैक टेस्ट इन द मार्केट। डज दिस ऐप आस्क फॉर आईडी प्रूफ? ऑब्वियस सी बात है कि व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग द मनी, दे शुड हैव द डिटेल्स की हु इज एक्चुअली डिपॉजिटिंग ना। थैंक यू सर, पाइथन का एग्जाम है। एक कौन सा पाइथन भाई? एक, दो पाइथन, लैंग्वेज वाला या फिर सांप वाले? लैंग्वेज ही होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पाइथन एग्जाम। मेरा हो गया एग्जाम से, तुम समझो और तुम्हारा एग्जाम समझो।
सीरियसली आफ्टर लिविंग द स्टडीज इट्स बिन कितना साल हो गया, 6-7 साल हो ही गए पढ़ाई छोड़े हुए. एंड इफ आई एवर गेट अ चांस पढ़ने के लिए लाइक फॉर द एग्जाम्स एंड ऑल, इट्स टू टफ. सर करेंटली द इंडियन मार्केट आर डाउन, इट्स गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. गुड टाइम टू एक्यूमुलेट मनी, नॉट द टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. अभी तो और गिरना बाकी है. 22,000 का लेवल आने दो. सर एक्सनेस का ऑलरेडी अकाउंट है बट इसमें पार्टनर ऐड नहीं किया है. आपका पार्टनर ऐड करने का प्रोसेस क्या है? कस्टमर केयर सपोर्ट को बस टेक्स्ट करना है कि आई वांट टू ऐड माय अकाउंट थ्रू दिस पार्टनर. ठीक है, तो वो हो जाएगा. दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर आई वाइंड अप? So my friend is also attending. If she can let me know that उसे समझ में आया या नहीं. Okay, will Exness has only Equus? No, they have. See, वो UPI Express के लिए they have Eco India. For UPI ID they will be having a different one. तो अलग अलग जैसे कि ना दे हैव मल्टीपल, जैसे कि किसी का टेक्निकल इशू हुआ तो दे विल पास इट टू समवन एल्स. दैट गोज लाइक दैट. और जैसे कि मान के चल लो ना, फॉर एन एग्जांपल यू नीड मनी, यू कॉन्टेक्टेड वन ऑफ योर फ्रेंड, ही डिड नॉट हैव, तो वो फिर आप दूसरे फ्रेंड के वो किसी और से पूछ के पूछेगा, तो लाइक दैट इट गोज. हाँ जी, कल लाइव ट्रेडिंग इंडियन मार्केट की रहेगी. सर ऑप्शन बाइंग की और भी स्ट्रेटजी है जो भी. हाँ, देर इज अ लॉट ऑफ मोर. There are a lot of more strategies like Bollinger Band is there, then CPR will be there, then I guess RSI will be also there. I'm not able to register in Access. Huh, you will not be able because you're in Canada. You have to use the one which is there. तो फिर घुमा के हमारे पास ही आएंगे सर. सर फंडिंग अकाउंट का तो कहीं और की होगी ना, लाइक फंडेड ट्रेडर्स नॉट इन एक्स. हाँ, फंडेड. दैट्स व्हाट फंडेड अकाउंट हमारा मेन फोकस रहेगा इन नेक्स्ट बाय द मंथ ऑफ लेट्स से बिफोर द दिवाली. आई वुड लाइक टू से दिस. फंडेड अकाउंट के लिए दिस टाइम विल हेल्प यू आउट. एक लेवल तक तो हेल्प करना चाहता हूँ. बाकी द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि कॉपी ट्रेडिंग वो डालना दे. ठीक है, बट अगेन लेट्स ट्राई आउट, ट्राई करते हैं. वैसा करेंगे नहीं, बट यू विल बी, आई एम श्योर आफ्टर अटेंडिंग द सेशन यू विल बी केपेबल कि आपको जरूरत नहीं पड़े, बट विल डू इट. फंडेड अकाउंट से मैंने कितना विड्रॉ करा अभी तक? ज्यादा मैंने मतलब रिसेंटली आई हैड बीन यूजिंग दिस अकाउंट फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम, बट अगेन 3 अकाउंट मास्टर अकाउंट मैंने उड़ा दिए थे रिसेंट में. तो ऐसा नहीं होता कि माइंडसेट सिर्फ आप ही का खराब होता है. इट गोस, सभी का खराब हो ही जाता है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. नोइंगली अननोइंगली हो जाता है कभी कभी. हम्म. तो टिल नाउ आई हैव टेकन आउट 6960. अभी तक तो फिलहाल इतना ही मिला है भाई. बाकी ये 24 में मिला है, 25 में मैंने निकाला ही नहीं अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है. तो या एंड इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी कितना ही था. इट इज क्लोज टू लेट्स से 6 lakhs ऑल्सो. द माई इन्वेस्टमेंट वॉज ओनली 35,000, जो 1 lakh का अकाउंट होता था, दैट आई परचेस्ड. तो अगेन दिस इज गुड इनफ. Because if I show you the withdrawal I had on a weekly basis, one was $2,000, then 3,500, then 1,250. Last was on 31st of December. उसके बाद दिसंबर में मैंने विड्रॉ करा था. उससे पहले नहीं करा था, उसके बाद भी नहीं करा. बट अगेन मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च आई विल बी डूइंग इट. नॉट येट प्लान बट अगेन. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस. बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. सर आप फंडिंग टिप्स में ही करते हो? हाँ जी, फंडिंग टिप्स आई फील बेटर कंपेयर टू अदर. सर इस बार आप ही कंप्लीट करोगे फॉरेक्स? अब्दुल्ला का पीजी स्टार्ट हो गया है, बट अगेन आई वांट हिम टू टेक सम क्लासेस ऑफ एसएमसी. ठीक है, बिकॉज ही हैज प्रॉपर बैक टेस्टेड डेटा. लास्ट टाइम से लेकर अभी तक उसके पास बैक टेस्टेड डेटा होंगे. बट बिफोर दैट टिल द टाइम आई विल बी टेकिंग इट अप. सुरेश हैज आस्क्ड एनी क्वेश्चन. सर स्केलर स्ट्रेटजी में डाउट है तो सो ओके, आई विल कीप इट अप.
सर आप फंडिंग पिप्स में करते हो? गुड, हाँ ऑलरेडी टोल्ड। ओके चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू।